See, student, in the last lecture we have seen that electron absorb the energy and go to the higher energy level, but in the higher energy level it remain unstable and therefore it emit energy and come down to the normal energy level or the ground energy level, depending upon to which energy level it is coming back. If it is coming back to the first energy level, that is ground state, and in that region is called as a UV region and it is called as a Lyman series. Okay, Lyman series. Then we also see that if the electron return from the excited state or from the any of the energy level to the second energy level, then it is called as the Balmer series, and Balmer series is visible only in the visible region. If electron return to the third energy level, it is called as the Paschen series. Electron return to the fourth energy level, it is called as the bracket series. And if electron returns to the fifth energy level, it is called as the Pfund series. So these all series we have done, correct? And today we'll do the numerical based on this. And by using this, we also got one formula in the last lecture, that the formula is, yes, you can calculate the nu bar. Nu bar is called as the wave number, and wave number is equal to 109677 into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square per centimeter is a wave number. And this number here 109677 is called as the Rydberg constant. And if you know the wave number, you can calculate the value of what? Lambda. Lambda is the wavelength. Okay. So till here we have done in the last lecture. Today we'll start the numerical based on this formula. Okay, so wave number. So I'll start. What is the formula of the wave number? The wave number is equal to 109677 into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, wave number. And we know that wave number is equal to 1 upon lambda. Means if you know the value of the wave number, you can calculate the value of the. So these are the two formulas we are going to use. Yes. Now first problem I'm doing from in our textbook. From our textbook, page number 43. Problem number 4.8. I'll just write down the problem. What is the wavelength of the photon emitted during the transition from orbit n phi to that of n2 in hydrogen atom. See here, we have to calculate the wavelength. Wavelength means what? Lambda. Calculate the wavelength of the photon emitted during the transition from this electron jumping from where? Electron jumping from the fifth orbit to the second orbit. So here we know that n2 is equal to phi, and electron jumping is to which orbit? Second. So electron jumping from fifth energy level to second energy level. And we know that when electron jump from the fifth energy level to second energy level, it is called as the Balmer series. And Balmer series occur in the range of
visible region. It occur in the range of visible region. So electron is jumping from the 5th energy level to 2nd energy level, correct? And we know that when electron return to 2nd energy level, it is called as the Balmer series, and that region is also called as the visible region. Means here all color we can able to see. Now I can use the formula directly. This formula I can use nu bar. So I'll just write down here nu bar equal to 109,677 into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. 109,677 into bracket 1 upon n1 square. n1 is 2 minus n2. इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है? 5th से जंप कर रहा है, तो यहाँ पे this is 2 square and this is 5 square. 109,677 into bracket 1 upon 2 square is 4. 1 upon 5 square is 25. 109,677 into 25 minus 4 LCM divided by 25 into 4. See, cross multiplication, 25 will go here, 4 will go here. So 25 minus 4 upon 25 into 4. 25 minus 4 is 21, and 25 into 4 is what? 100. Okay. And here this is what? Nu bar. Nu bar, and nu bar in which unit? Centimeter. This is we got nu bar in centimeter. But you know what? Nu bar is called as a wave number. Wave number in centimeter. But they do not want the wave number. तो उनको क्या calculate करना है? देखो यहाँ पे they have asked us to calculate wavelength. और wavelength और इनका relation क्या है? देखो nu bar is equal to 1 upon lambda. तो या तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट करो और न्यू बार का वैल्यू फाइंड आउट करो, और न्यू बार का वैल्यू मिलने के बाद, बट फर्स्ट प्रॉब्लम है तो मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा. अगर 109,677 को 100 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 1096.77 मल्टीप्लाई बाय 21. और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 109, एक काम करोगे, कोई अगर आपके सामने कैलकुलेटर रहेगा तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या पहले डिवाइड करो 100 से. 109,677 डिवाइड बाय 100 करो. यस, तो यू आर गिविंग मी डायरेक्ट आंसर. तो दिस इज 23032.17 per centimeter. This is the answer for wave number. This is the answer for wave number, nu bar. Now once you got the wave number, we can calculate the frequency. Sorry, we can calculate the wavelength. And what is the formula? Nu bar is equal to 1 upon lambda. 1 minute, I'll turn the page. So I can use the formula here. Nu bar is equal to 1 upon lambda. And what is the value of the nu bar? 232.17 is 1 upon lambda. So therefore lambda is equal to 1 upon 23032.17. And we know that this is what unit we are having per centimeter. So here per centimeter will go up and becomes what? Centimeter. तो यहाँ पे wavelength किसमें मिलेगा? हमें सेंटीमीटर में मिलेगा. But anyway, now this या आपको divide करना पड़ेगा. Division can be done by using a log. आपको log मालूम है? क्या आपने log पढ़ा हुआ है? Yes, please reply. Have you all studied log? Okay, no.
ठीक है, अगर लॉग स्टडी नहीं किया है इसलिए मतलब फिर आई राइट डाउन द डायरेक्ट आंसर, देन द लॉग अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 4.34 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। मतलब अगर हमें डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4.34 इन मतलब 0.000 समथिंग आएगा, बट आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर, सो 4.34 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ओके, यह हमारा वेवलेंथ मिला, बट वी गॉट द वेवलेंथ इन विच यूनिट सेंटीमीटर। बट नॉर्मली हम लोग वेवलेंथ कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, इन नैनोमीटर। तो व्हाट इज द रिलेशन हियर, 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये रिलेशन है। देखो, अगर नैनोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁹ से। और नैनोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, -7 से। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मुझे सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ नैनोमीटर। देखो, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁷। लेकिन अगर सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻+7। तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 4.34 इंटू 10⁻⁵ इंटू, अभी सेंटीमीटर को मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁷। सो 4.34 इंटू 10⁻⁵ प्लस 7, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज 100, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे 434, तो ये हमारा यूनिट आ जाएगा नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर। और ये हमारा विजिबल रेंज है, ये इस वेवलेंथ के लाइट हमें देख सकते हैं, तो ये हमारा वेवलेंथ है। और अगर आपको मतलब उन्होंने बोला नहीं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना रहेगा, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला कौन सा था, अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। देखो, न्यू बार इज वेव नंबर एंड ओनली न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना तो सी इज इक्वल सी अपॉन लैम्बडा। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा भी मीटर में लेना पड़ेगा, तो 434 इंटू नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मतलब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना, -9। यहाँ पे 10⁻⁹ मीटर। ओके, तो ये हुआ। और अगर फ्रीक्वेंसी है, एक काम करो, कोई मुझे डिवाइड करके बोलेगा, कैलकुलेटर पे डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाय 434 करो। (0.006912) 0.006912, करेक्ट, इंटू 10⁻⁸। और ये -9 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा, +9, तो 10⁻⁻⁹। देखो, ये 10⁻⁸, -9 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +9, और यहाँ पे 0.006912, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6.912 इंटू 10⁻²। देखो, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो पावर -1, इधर शिफ्ट करोगे तो -2, और यहाँ पे शिफ्ट करो -2, 10⁻³ इंटू 10⁻⁸ 8 + 8 16 + 1 17, 8 + 8 16 + 1 17, 8 + 9 17, and then here 6.912 into 10⁻⁷ 17 - 3 14 हर्ट्ज। और अगर हर्ट्ज नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हो, 6.912 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमीडिएट। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन
सेकेंड सॉरी अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वेवलेंथ कितना रहेगा, जो लाइट एमिट होगा उसका वेवलेंथ कितना रहेगा, 434 नैनोमीटर रहेगा, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, 6.912 into 10⁻14 हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज कैन बी रिटन एज व्हाट, पर सेकेंड। ओके, ये एक प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इस टाइप का। Calculate, I'll just write down the problem here. Calculate the wavelength of spectral line. Calculate the wavelength of spectral line in Lyman series. Lyman series की बात करें हम लोग। Calculate the wavelength of the spectral line in Lyman series corresponding to N2 equals to 3. Calculate the wavelength of the spectral line in Lyman series corresponding to N2 equal to 3. मतलब इलेक्ट्रॉन N2 3 है, और लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, N2 मतलब N1 कहां पे रहेगा, 1, N1 1 मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3rd एनर्जी लेवल से, और कहां पे जंप करेगा, फर्स्ट, बिकॉज वी नो दैट इन लाइमन सीरीज। देखो एक बार दिखाता हूं मैं आपको। लाइमन सीरीज में क्या था, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी एनर्जी लेवल, लेकिन कहां पे जंप करेगा, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट पे जंप करेगा लाइमन सीरीज में। तो इसलिए तो N1 N2 कहां से जंप करेगा, 3rd से, लेकिन कहां पे जंप करेगा, 1 तक। ओके, तो अगेन फर्स्ट विल कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 109677, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, R इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर minus 1 upon N2 square, 109677 into 1 upon N1 1 square, 1 upon N2 3 square, 109677 1 upon 1 minus 1 upon 9, 109677 into 9 into go here, should be 9 minus 1 upon 9, 9 minus 1 upon 9, 109677, 9 minus 1 is 8, 8 upon 9. Okay, so this is the value of the wave number, and wave number is in which unit, per centimeter. Wave number is in which unit, per centimeter. Okay, but अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या कैलकुलेशन करना है तो करो कैलकुलेशन। कोई तो एक काम करो, 109677 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने लॉग किया है तो लॉग से इजी हो जाता है। 109677 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, एट 77416। थैंक यू जानवी। डिवाइडेड बाय द 9, 9 से डिवाइड करो, सो 97490 490.6। थैंक यू यश। तो पर सेंटीमीटर ये हमारा फ्रीक्वेंसी, सॉरी
वेव नंबर करेक्ट, ये हमारा वेव नंबर है, बट हमें निकालना है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो वेव नंबर कितना है हमारे पास, तो लैम्बडा यहाँ पे चला जाएगा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/वेव नंबर, एंड 1/वेव नंबर, व्हाट इज वेव नंबर, 97490.66। ये मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 97490.66। आ रहा है डिवीजन कि मैं लॉग से करूं? आपको डिवीजन आ रहा है कि मैं करूं डिवीजन? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है डिवीजन तो आई जस्ट डू इट बाय लॉग, लेकिन लॉग आपको मालूम नहीं है, सर आपको मैथ्स में पढ़ाएंगे। लॉग ऑफ 1, न्यूमरेटर में 1 है, तो वो लॉग ऑफ 1 आएगा 0.00। कैसे आएगा आपको मालूम नहीं, बिकॉज इसका रूल्स है लॉग ऑफ 1। तो लॉग ऑफ 1 अगर करोगे तो 1.00 माइनस लॉग ऑफ, नंबर कौन सा यहाँ पे, एक मिनट, आई जस्ट डू इट ऑन द अदर पेज। वन मिनट, 00102। एक मिनट का वापस टाइप करोगे प्लीज। एक मिनट में कर लेता हूँ यहाँ। Yes, so this is the answer, 0.000102 था सेंटीमीटर। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूंगा पावर -1, इधर शिफ्ट करूंगा तो -2, यहाँ पे शिफ्ट करूंगा -3, इधर करूंगा तो -4, और यहाँ पे करूंगा तो -5। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.026 into 10 raised to power -5 centimeter. But wavelength always you want in which unit, nanometer. So then we should know the conversion. We should know the conversion, that is conversion 1 nanometer is equal to 10 raised to -7 centimeter. Therefore 1 centimeter is equal to 10 raised to +7 nanometer. ये हमारा conversion है। 1 nanometer is equal to 10 raised to -7 centimeter. So 1 centimeter is equal to 10 raised to 7 nanometer. तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमें सेंटीमीटर में मिला है, मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 raised to power 7. So lambda is equal to 1.026 into 10 raised to -5 into 10 raised to 7. तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.026 into 10 raised to 2 नैनोमीटर। मतलब ये अगर 10 raised to 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 102.6 नैनोमीटर। ये हमारा वेवलेंथ है, वो नैनोमीटर। लेकिन अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना रहेगा, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, लैम्बडा इज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी,
अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लैम्डा भी किस में होना चाहिए? मीटर में. और नैनोमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 102.6 into 10⁻⁹ मीटर. ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? पर सेकेंड. पर सेकेंड मतलब (10⁻⁻1). अच्छा, अभी मुझे एक काम करो, कोई डिवाइड करके बोलो. 3/102.6 कितना आएगा? जीरो पॉइंट जीरो जीरो 0.02923. 0.02923. थैंक यू यश. 0.02923 into 10⁸8. और ये -9 ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा? +9. तो 10⁻+9. ओके, तो यहाँ पे इज इक्वल टू अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करूंगा यहाँ पे तो इधर आएगा 2.923. डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट पावर -1, इधर शिफ्ट करूंगा तो -2. सो 2.923 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻17. तो 2.923 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज. और क्या लिख सकते हो? पर सेकेंड. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब आ जाएगा तो उसका वेवलेंथ कितना रहेगा? 102.6 नैनोमीटर रहेगा. उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? 2.923 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज रहेगा. आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो. एनर्जी कितना एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन? तो एनर्जी एमिटेड इज गिवन बाय व्हिच फॉर्मूला? h nu. Energy emitted by the electron given by the which formula? h nu. H is a Planck's constant. Planck's constant का value 6.626. Yes, Janvi. Sir, the value 0.002923 है. अच्छा, 0.00 आहे. हो sir. Okay, 1 minute. Then 0.00. 1 minute. So here I'll write 0.2.923 into 10⁻⁻3. And then 17 minus 3. This will be 14. Okay, thank you. 14, correct. We got the frequency. Now we can also calculate. बघा परत एकदा चेक करा रे. Please, both of you, Yash and Janvi, please check 3 divided by 102.6. Both of you just try once again. दोघांनी एकदा ट्राय करा बघू. Sir, 0.0 है. Sorry. ठीक है, नो प्रॉब्लेम. ओके, थँक यू. तो सॉरी, एक 0 कॅन्सल केला तो एक 0.0. तो हियर आय विल हॅव द पॉवर 10⁻⁻2. So here I will have the answer 2.923 into 10⁻15 hertz or second is the answer. Along with like that we can also calculate what energy. आप energy भी calculate कर सकते हो. Energy के लिए formula क्या है? E is equal to h nu. What is h? Planck's constant 6.626 into 10⁻⁻34 और Planck's constant का value joule second into frequency. What is frequency? 2.923 into 10⁻15 per second. See here. ये हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है जो जूल सेकेंड में है. ये हमारा फ्रीक्वेंसी है 2.923 into 10⁻15 पर सेकंड. तो यहाँ का (10⁻⁻1) और यहाँ (10⁻+1) कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर किस में आ जाएगा? जूल में. एक काम करो, अभी 6.626 मल्टीप्लाई बाय 2.923 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ पे पावर +15. इन्हें मल्टीप्लाई करो. 6.626 इंटू 2.923 को मल्टीप्लाई करो.
Yes, it is coming 19.3677 into 10 raised to power 34 minus 15. 34 minus 34 plus 15. So 4 minus 19 is the and this is the answer in joule. So this is the energy. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर हमारा थर्ड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो इतना एनर्जी एमिट करेगा. कितना एनर्जी एमिट करेगा? 19.36 into 10 raised to power minus 19 जूल. इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा जूल. मतलब इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल तो हम उसका वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारे इस टाइप के दो न्यूमेरिकल्स हुए. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज दैट जो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा इनकम्प्लीट रखा, द नंबर ऑफ spectral lines, number of spectral line or number of transition, number of spectral and number of transition. मतलब for example, for electron in fourth energy level, how many transition are possible. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में है तो उसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, कितने मतलब कितने तरह से आएगा. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे this is first n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4. ओके, सो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा कहाँ पे फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो अगर इलेक्ट्रॉन को फोर्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आने तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? एक तो होगा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फोर्थ से 1 पे चला जाएगा, ये एक ट्रांजिशन. दूसरा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फोर्थ से चला जाएगा थर्ड पे, थर्ड से चला जाएगा सेकेंड पे और सेकेंड से चला जाएगा फर्स्ट पे. धीरे धीरे चला जाएगा. एक तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली चला जाएगा, एक थर्ड फोर्थ से थर्ड तक, थर्ड से सेकेंड तक, सेकेंड से 1 तक, ये हुआ. दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्ट मतलब फोर्थ से सेकेंड तक और सेकेंड का यहाँ पे ऑलरेडी है, एक ट्रांजिशन हुआ. और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा और यहां से डायरेक्टली जंप करेगा. ये अलग अलग पॉसिबल. तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी गॉट हियर? सो देखो एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल पे है और इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट में अगर आना है तो कितने तरह से मतलब कितने पॉसिबिलिटीज है, हमें कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, हमें कितने ट्रांजिशन मिलेंगे. मतलब ना अगर हम लोग ऐसा स्पेक्ट्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे तो स्पेक्ट्रोग्राम में यहाँ पे कितने लाइंस मिलेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस मिलेंगे. इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से आ रहा है तो यहाँ पे हमें कितने लाइंस मिलेंगे? ऐसे ग्राफ में कितने लाइंस मिलेंगे? ग्राफ मतलब स्पेक्ट्रोग्राम, यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राम बोल सकते हैं. ऐसे लाइंस कितने मिलेंगे? देखो एक तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फोर्थ से कहाँ पे आएगा? फर्स्ट पे आएगा, ये एक ट्रांजिशन हुआ. दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फोर्थ से थर्ड पे आ जाएगा, थर्ड से सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड से फर्स्ट पे आएगा. ये 3 ट्रांजिशन है. यस करेक्ट. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन आर 6. या दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या है? 4 से 2 पे आ जाएगा,
4 से 2 और 2 से 1, लेकिन 2 से 1 ऑलरेडी यहाँ पे, और दूसरा 4 से 3rd and 3rd से डायरेक्टली 1. So here total number of transition are 6. Total number of transitions are 6. ओके, एक मिनट में बताता हूँ. देखो एक कैसे, हमारा 1 मिनट है, एक्सप्लेन करता हूँ. देखो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 4th एनर्जी लेवल में. इलेक्ट्रॉन को 4th एनर्जी लेवल से 1st एनर्जी लेवल में आना है. तो फर्स्ट तो कैसे आएगा, देखो वापस सेम एक्सप्लेन करता हूं मैं. यहाँ पे अगर हमारा n इक्वल टू 1 है, देन n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, और n इक्वल टू 4 है. हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, 4th एनर्जी लेवल पे है. आपला इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवलला आहे, आणि इलेक्ट्रॉनला कुठे यायचं आहे, 1st एनर्जी लेवलला यायचं आहे. कसा येईल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली येऊ शकतो. म्हणजे ही एक ट्रान्झिशन झाली, एक ट्रान्झिशन झाली. प्लस इलेक्ट्रॉन काय करेल, इथून इथपर्यंत डायरेक्टली येईल, असा येईल, डायरेक्टली येईल, आणि मग इथून असा जम्प मारेल. म्हणजे ह्या 2 ट्रान्झिशन झाल्या. म्हणजे इलेक्ट्रॉनला काही पण करून कुठून यायचं आहे, 4th एनर्जी लेवल पासून 1st एनर्जी लेवलला यायचं आहे. मग तो कसा येईल, एक तर डायरेक्ट येऊ शकेल, किंवा इथून इथपर्यंत आला आणि मग इथे आला. बरोबर, हे पहिलं आणि हे दुसरं. आता किंवा तो असं करेल, इथून इथपर्यंत येईल आणि मग इथून डायरेक्ट खाली येईल. इथून किती ट्रान्झिशन झाल्यात, 2. ओके. किंवा म्हणजे इथून तो इथपर्यंत आला 3rd पर्यंत, आणि 3rd वरून डायरेक्ट आला. तर दुसरं 4th पासून 3rd पर्यंत येईल, 4th पासून 3rd पर्यंत येईल, मग 3rd पासून 2nd पर्यंत येईल, आणि 2nd पासून 1 पर्यंत येईल. ही एक लाईन झाली, ही एक लाईन. किती लाईन झाल्या बघा, 1 2 3 4 5 6. सो इक्वल टू 6. मला इन केस काय सांगायचं की इलेक्ट्रॉनला जर इथून जम्प मारायची असेल आणि इथे यायचं असेल, तर इलेक्ट्रॉनला किती प्रकारे पॉसिबिलिटीज आहेत. इलेक्ट्रॉन कॅन हॅव हाऊ मेनी पॉसिबिलिटीज, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज. म्हणजे आपला जो ग्राफ आपण ड्रॉ करू, ग्राफ आपला जो स्पेक्ट्रोग्राम जो तुम्हाला मिळते, तुम्हाला 6 लाईन दिसतील. 1 2 3 4 5 6 लाईन. कारण प्रत्येक लाईनची एनर्जी, या प्रत्येक लाईनची एनर्जी, प्रत्येक लाईनची फ्रिक्वेन्सी, प्रत्येक लाईनची वेव्हलेंथ वेगळी असेल. कारण ह्यांच्यातला गॅप बघा, इथे 4 to 1 आहे, इथे 4 to 3 आहे, इथे 4 to 3, आणि मग नंतर असं आहे. ट्रान्झिशन तुम्हाला कळतं का. लास्ट पॉसिबिलिटी म्हणजे हा, अच्छा, लास्ट पॉसिबिलिटी म्हणजे मी असं घेतलं, इलेक्ट्रॉन 4 पासून 3 पर्यंत आला. असं बघ, इलेक्ट्रॉन 4 पासून 3 पर्यंत आला, 3 पासून 2 पर्यंत आला, आणि 2 पासून 1 पर्यंत आला. पुन्हा बघ, 4 पासून 3 पर्यंत आला, 3 पासून 2 पर्यंत आला, आणि 2 पासून 1 पर्यंत आला. तू म्हणशील आता किती झाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 झाले. पण त्यापैकी बघ ना, ही ट्रान्झिशन जी आहे, ही ट्रान्झिशन आणि ही ऑलरेडी आहे ना इथे, इथून 2nd to 1 2nd to 1 म्हणजे एकदाच, ही काउंट नाही केली, इथे काउंट केली. आता इथे 4 पासून 3 पर्यंत, इथे पण 4 पासून 3 पर्यंत 2 आहेत ना, मग दोघांपैकी एकच, म्हणून एकदाच काउंट केली. म्हणजे मल्टिपल असेल तर काउंट नाही करायचे, एकदाच काउंट करायचे. 1 2 3 4 5 6 ट्रान्झिशन आहे. ओके, ठीक आहे. म्हणजे जर आपला इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी, पण आता आपल्याला असं मोजायचं नाहीये, आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला युज करायचा. कोणता फॉर्म्युला, द नंबर ऑफ ट्रान्झिशन, number of transition are given by the formula n into bracket n minus 1 upon 2. आपण प्रत्येक वेळेला असं कॅल्क्युलेट करू शकत नाही, म्हणून आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा आहे. नंबर ऑफ ट्रान्झिशन इज इक्वल टू n into bracket n minus 1 upon 2. Okay, so here n, what is n? Electron is in the which orbit? 4. Want to return to which orbit? Ground. So n is equal to 4. So I'll just write 4 into bracket 4 minus 1 upon 2. 4 into bracket 4 minus 1 upon 2. Now 4 minus 4. 4 minus 1, 3 upon 2. And that is equal to 2 2s are 4.
So 2 into 3, 6. So 6 ट्रान्झिशन. बघा 6 ट्रान्झिशन. म्हणजे तुम्हाला असं करायची गरज नाही, पण तुम्हाला थेरॉटिकली पण माहिती पाहिजे की डायरेक्टली फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. हाऊ मेनी ट्रान्झिशन्स आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन हॅव्हिंग इन द विच ऑर्बिट? 4th ऑर्बिट. Okay, I'll take one more example. How many transitions are possible? How many transitions are possible for n equal to 5? Directly you can use formula. Number of transition. Number of transition is equal to n into bracket n minus 1 upon 2. Number of transition is n into bracket n minus 1 upon 2. N is equal to 5. So 5 into bracket 5 minus 1 upon 2. 5 into bracket 5 minus 1 is 4 upon 2. 2 2s are 4. So 5 into 2 will be how much? 10. 10 transition. So we will get 10. म्हणजे आपण जसा स्पेक्ट्रोग्रामचा ग्राफ काढला, तर in this graph you will get how many lines? 10 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lines. You will get 10 lines. 10 lines you will get. Correct? So total 10 lines will be there. Okay, have you understood this part? Yes. Yes, have you all understood? So shall I go ahead? Yes. Okay. Sir. Okay. Now I'm just going for the limitations of in our textbook. We are on page number 43. We are on page number 43. Limitations of Bohr's theory. Limitation on Bohr's theory. What a limitation. See, in the last lecture we have seen what is the Bohr's theory. Now Bohr's theory said that by using the Bohr's theory, we can calculate the energy of the revolving electron. We can calculate the radius of the orbit, and we can also calculate the velocity of the electron in the orbit by using Bohr's theory. But what are the limitations the Bohr's theory had? The Bohr's theory had the limitation. The first limitation here, the first limitation. Bohr's model failed to cylinder. yes. म्यूट करा रे, कोणाचं अनम्यूट आहे. Please mute yourself, Akash. What is the first limitation here? Bohr's model failed to explain finer details of hydrogen atom spectrum. देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन फाइन मतलब वेरी थिन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. मतलब देखो हमें बोर्स में ऐसे लाइंस मिले, ये ऐसे लाइंस मिले, सिंगल लाइंस मिले. वो लाइंस क्यों मिले वो बोर ने एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो एक लाइंस मिल रहा था वो लाइंस और बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट अप हो रहा था. एक लाइन बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट अप हो रहा था. सिंगल लाइन
बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप क्यों हो रहा है ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब बोर को ऐसे सिंगल लाइन मिला, लेकिन ये सिंगल लाइन जो यहाँ पे मिल रहा था वो सिंगल लाइन, और मतलब अगर आप अच्छे सी बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन फाइनर डिटेल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम observed in sophisticated स्पेक्ट्रोस्कोप। मतलब अगर देखो यहाँ पे हमें एक लाइन मिल रहा था, लेकिन अगर हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी वाला अगर स्पेक्ट्रोस्कोप अगर यूज कर दिया तो ये जो एक लाइन था वो बहुत सारे लाइंस में और स्प्लिट अप हो रहा था। तो ये क्यों स्प्लिट अप हो रहा था वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब बोर ने स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन किया, ये लाइंस क्यों मिल रहे थे वो एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी सेम लाइन अगर आप अच्छे वाले स्पेक्ट्रोस्कोप में अगर देखोगे तो एक लाइन बहुत सारे लाइंस में स्प्लिट अप हो रहा था, लेकिन वो बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप क्यों हो रहा है ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब जो रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक बोर ने एक्सप्लेन किया, क्यों रुदरफोर्ड को ऐसे लाइंस मिल रहे थे, वो लाइंस क्यों मिल रहे थे बोर ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये लाइन और अगर अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट में देखोगे तो एक लाइन और बहुत सारे लाइंस में स्प्लिट अप हो रहा था, बहुत सारे लाइंस में। तो ऐसा क्यों हो रहा था ये बोर एक्सप्लेन नाही करा। म्हणजे एक लाइन जी आहे ती आणखीन भरपूर लाइन मध्ये स्प्लिटअप का होते हे बोर एक्सप्लेन करू शकला नाही, बरोबर। सो बोर मॉडेल फेल टू एक्सप्लेन, Bohr model failed to explain finer details of hydrogen atom spectrum observed in sophisticated instruments. Okay. Second limitation. Bohr model was unable to explain Bohr model was unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. Bohr model was unable to explain. Bohr model explain नहीं कर सका. Bohr model was unable to explain spectrum of atom other than hydrogen. मतलब जो एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा थे, मतलब बोर ने क्या किया कि हमें मालूम है बोर मॉडल वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मतलब जो एटम हाइड्रोजन की तरह है उनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल था। बोर मॉडल हाइड्रोजन के अलावा दूसरे मॉडल के लिए एप्लीकेबल, दूसरे एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था। मतलब व्हाट इज सेकंड लिमिटेशन कि बोर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन or hydrogen like species, but it is not applicable for other atoms. Is second limitation. Third limitation, Bohr theory could not explain splitting of spectral lines in the presence of magnetic field that is Zeeman effect or
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। देखो इसका क्या था, बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, मतलब बोर थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब ये जो सिंगल लाइन था और बहुत सारे लाइंस में स्प्लिट अप हो रहा था, कभी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया, ये हमारा सिंगल लाइन है, अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया तो लाइन, एक लाइन बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप हो रही थी, क्यों, वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। सिमिलरली सिंगल लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिंगल लाइन भी बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप होती, क्यों हो रही थी, ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर, मतलब ये जो सिंगल लाइन का स्पेक्ट्रा था, सिंगल लाइन का जो स्पेक्ट्रा है वो मैग्नेटिक फील्ड में क्यों स्प्लिट अप हो रहा है इन मल्टीपल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्यों स्प्लिट अप हो रहा है, वो बोर एक्सप्लेन नहीं किया था। किसने एक्सप्लेन किया था, फिर ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था जीमैन ने, therefore it is called as the Zeeman effect और जीमन इफेक्ट बोल सकते हो। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्लेनेशन किया था स्टार्क ने, तो इसलिए इसे कहते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट। इफेक्ट देखो यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग को जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था, एक सिंगल लाइन हमें अगर मिल रहा था, सिंगल लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में ये सिंगल लाइन बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप हो रहा था, क्यों हो रहा था, बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर, लेकिन किसने एक्सप्लेन कर दिया, जीमेन ने। तो इसका मतलब द बोर थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बोर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन किसने एक्सप्लेन किया, जीमेन ने। और बोर वाज नॉट एबल टू आल्सो एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाइन क्यों स्प्लिट अप हो रहा था, ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये इफेक्ट किसने ऑब्जर्व किया था, स्टार्क ने। तो इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन बोर ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में लाइन क्यों स्प्लिट अप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी सिंगल लाइन क्यों स्प्लिट अप हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग किसने एक्सप्लेन किया था, जीमेन ने, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्प्लिटिंग किसने एक्सप्लेन किया था, स्टार्क ने। So Bohr was not able to explain the Zeeman effect and the Stark effect. And the last point, एक मिनट, एक पेज नंबर 7 है, point number 3. Now I'll go for the next point number 4. Bohr's theory failed to explain the ability of atoms to form molecule देखो मतलब बोर थ्योरी और क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका, बोर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन ability of atom to form the molecule by the chemical bond, means why the two atom combine together and form the chemical bond, why the two atoms combine together and form the chemical bond, मतलब दो एटम, लाइक फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन एटम साथ में आके मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म करते, ये क्लोरीन एटम, ये दूसरा क्लोरीन एटम साथ में आके क्लोरीन मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म करते हैं, ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ द एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, मतलब हम लोग मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म करते हैं, हमारे पास एटम्स थे, तो लेकिन व्हाई द टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, व्हाई द टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, ये पॉइंट बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बोर के क्या क्या लिमिटेशंस थे, तो सबसे पहला वाला लिमिटेशंस क्या था कि बोर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाइड्रोजन का जो सिंगल लाइन हमें मिला था वो सिंगल लाइन और बहुत सारे लाइन में स्प्लिट अप क्यों हो रहा था। सेकेंड, बोर वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली हाइड्रोजन एटम, बाकी और एटम के वो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सका। थर्ड,
जो हमें सिंगल लाइन मिल रहा था, हमारा स्पेक्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट अप हो रहा था, लेकिन वो क्यों स्प्लिट अप हो रहा था वो बोर एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट अप क्यों होता है किसने एक्सप्लेन किया था, जीमेन ने, इसलिए उसे नाम दिया जीमेन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट अप होते हैं बोर ने एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन किसने एक्सप्लेन किया था, स्टार्क ने, इसलिए उसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। एंड लास्ट में why the two atom combine together to form the molecule, Bohr was not able to explain। the atoms combine होके molecules क्यों फॉर्म करते हैं ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर सका, ये बोर्स के लिमिटेशंस थे। ओके, so today we have seen the numerical based on the spectra, hydrogen spectra and the limitations of the Bohr's theory। अभी बोर्स थ्योरी में भी लिमिटेशन आ गए, तो इसके लिए हमें और आगे वाला थ्योरी स्टडी करना पड़ेगा। पहले रुदरफोर्ड का थ्योरी था, रुदरफोर्ड में लिमिटेशंस थे, तो इसलिए बोर के बारे में स्टडी कर दिया। अभी बोर में भी लिमिटेशंस थे, तो फिर आगे वाला थ्योरी स्टडी करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पहला डिस्कवर हुआ था और उसके बाद बोर थ्योरी आई थी। लेकिन मैंने जब अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, पहले बोर थ्योरी एक्सप्लेन किया, बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया। बट रियलिटी में क्या हुआ था, रियलिटी में पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ था और उसके बाद बोर थ्योरी आई थी, फिर उनको एनर्जी के बारे में वगैरह पता चला। ठीक है, बट एनीवे वी हैव डन विद द रुदरफोर्ड थ्योरी, वी हैव डन विद द बोर थ्योरी, वी हैव डन विद द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, और बोर के लिमिटेशंस वगैरह हो गए। और एक क्या किया था, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब अगर हमारे पास वेव्स है, अगर हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी हैज अ डुअल नेचर, मैटर एज वेल एज, दे बिहेव एज अ मैटर एज वेल एज अ वेव। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हुए अभी तक। एक टॉपिक किया था हम लोगों ने रुदरफोर्ड थ्योरी, उसके पहले डिस्कवरी किया था। रुदरफोर्ड थ्योरी के बाद किया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, the radiation can be in the form of particle, radiation can be in the form of wave। उसके बाद बोर थ्योरी किया था, बोर थ्योरी के लिमिटेशंस किए थे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी लेकिन बोर थ्योरी फेल हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले थ्योरी के स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो